پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 7۔ دونوں کے ہاتھ دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ سہراب نے رخ پھیرا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ شمع کا جی چاہا کہ اسے روک لے، اسے آواز دے لے، اس کے ساتھ چلی جائے، مگر اس کے قدم من بھر کے ہو گئے، زبان خشک ہو گئی، گلا رند گیا، وہ باہیں پھیلائے کھڑی رہ گئی۔ ابھی ان بازوؤں کے حلقے سہراب کے وجود سے پر تھے، ابھی یہ خلا گزیدہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے بازو پہلوؤں میں آ رہے، اس کی خالی خالی نظریں کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھی جس سے ابھی سہراب نکل کر گیا تھا۔ اسے اس کی واپسی تک اس خالی دروازے کو دیکھنا تھا، انتظار کے تلخ لمحات سے اس دروازے کو بہلائے رکھنا تھا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ جانم۔ اس کے کانوں میں سہراب کے آخری الفاظ کی باز گشت رقصاں تھی۔ پھر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور روانہ ہو جانے کی آوازوں نے جنم لیا۔ دھیرے دھیرے انجن کا شور دور ہوتا چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں پاس پڑی کرسی پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اسے ان کو بڑھنے سے روکنا تھا۔ سہراب نے اسے رونے سے منع کیا تھا۔ بے اختیار اس کا سر جھک گیا اور دل بارگاہ ایزدی میں سہراب کے لیے سراپا دعا ہوتا چلا گیا۔ سیاہ محل ہلکی دھوپ کی تمازت میں دور سے ایک ایسے برباد ویرانے کی مانند دمک رہا تھا جس کی داستان صفحہ ارض سے مٹاتے مٹاتے وقت بھی ہانپنے لگ گیا ہو۔ شمروز خان سہراب اور فاروقی کو سیاہ محل کی ممنوعہ باڑ کے پار اتار کر اپنی کھٹارہ جیب میں واپس جا چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے سفری بیگ کاندھوں پر لٹکائے باڑ عبور کر کے سیاہ محل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے اور آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بار بار سیاہ محل کے چمکتے کھنڈرات کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے ریوالور پاکٹ سے نکل کر بیلٹوں میں اڑس لیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر 1 سیکنڈ کے وقفے میں انہیں استعمال کر سکیں۔ ابھی صرف 9 بجے تھے، مگر ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے دن آدھے سے زیادہ نکل چکا ہو۔ وادی کیلاش کا یہ علاقہ سرسبز و شاداب اور موسم سردی کا تھا، پھر بھی ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ان کے مسام پسینہ اگلنے کی رفتار بڑھاتے جا رہے ہیں۔ سیاہ محل کی باڑ والے حصے کے باہر دائیں طرف ایک قدرتی چشمہ تھا جو اب بھی رواں تھا۔ انہوں نے اندر آنے سے پہلے اپنی اپنی چھاگلیں وہاں سے بھر لی تھی جو ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ سیاہ محل کے عین سامنے پہنچ کر رک گئے۔ فاروقی نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر ایک بھرپور نظر محل کے کھنڈرات پر ڈالی، ارد گرد گھوم کر دیکھا۔ سہراب بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر جیسے نظروں میں فیصلہ ہو گیا، انہوں نے بیگ کی سائیڈ زپ کھول کر اپنی سرچ لائٹ نکال کر ہاتھ میں تھامی، زپ بند کی اور پہلو بے پہلو کھنڈرات کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ان کے قدم اسی آدھی چھت والے حال میں آ کر رک گئے جہاں 2 دن قبل سہراب اور شمع آ چکے تھے۔ دونوں نے بیک وقت سرچ لائٹ آن کی تو حال کا اندھیرا جیسے دم دبا کر بھاگ نکلا۔ سہراب کی سرچ لائٹ کا روشن دائرہ اپنی وسعت کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے فرش، چھت اور دیواروں پر گردش کرتا ہوا حال کے آخری گوشے میں جا رکا تو سہراب چونک پڑا۔ ٹوٹی پھوٹی چھت سے منعکس ہو کر آتی ہوئی سورج کی کرنوں
और सर्च लाइट की रोशनी ने उस हिस्से को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माहौल की असीबजदगी में यकायक बेहद इजाफा हो गया था। सोहराब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, कंपटियों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई और सारे बदन में चूंटियाँ सी रेंगने लगी थीं। दिल की धक धक उसे कानों में सुनाई दे रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि अभी इस दीवार में मौजूद जंगले के पीछे वो बूढ़ा नमूदार होगा और उसके खौफनाक कहकों और किसी अजीबो गरीब नामूस जुबान पर मबनी चीखते जुमलों से सारा स्या महल गूंज उठेगा। मगर कुछ भी ना हुआ। दीवार में लगा जंगला उदास और महीब सन्नाटे की आंखों से उनको घूरता रहा। उसी वक्त फारूकी ने उसका बाजू थामा तो वह चौंक पड़ा। कुछ कहे सुने बगैर वो उसे साथ लिए आगे बढ़ा और उसे जंगले के सामने ला खड़ा किया। दीवार में निस्ब वो लोहे की सलाखों वाला 3 ज़रब 2 फुट का जंगला अब उनके बिल्कुल सामने दांत भींचे खड़ा था। उसी जंगले के पीछे देखा था आपने इस बूढ़े को फारूकी की आवाज़ जैसी हाल की दीवार से लड़ पड़ी। सोहराब ने जवान देना चाहा मगर महज असबात में सर हिलाकर रह गया। उसके हलक में कांटे पड़ गए थे। आइए देखते हैं, फारूकी ये कहकर आगे बढ़ा। सोहराब ने उसके अकब में कदम बढ़ाए। जंगले के करीब पहुंचकर फारूकी उसके अंदर झांकने लगा। सोहराब की हिम्मत पर खौफ का गलबा तारी हो रहा था। ताहम उसने फारूकी की तकलीद में सलाखों से माथा टिकाकर अंदर झांका। ये एक कोठरी का हिस्सा था जो अंदर से खाली पड़ी थी। कोठरी के अंदर सर्च लाइट से रोशनी फेंकी गई मगर अंदर कोई दरवाज़ा या कोई और खिड़की ना थी। यानी उस कोठरी का वाहिद रास्ता, खिड़की, रोशनदान या दरवाज़ा सिर्फ इस जंगले को कहा जा सकता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो कोठरी एक ऐसा मकबरा थी जिसके अंदर जाने या बाहर आने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, यानी वो सलाखों वाली खिड़की। मगर उससे ना तो अंदर जाने में कोई इंसान कामयाब हो सकता था ना बाहर आने में। फिर एक बात और भी थी कि कोठरी की दीवारें बेहद मजबूत और अब तक वक़्त की दस्तबर्द से महफूज थीं। ये तो बिल्कुल खाली है, सोहराब ने मायूसी से कहा। हाँ, फारूकी ने पीछे हटते हुए कहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। क्या मतलब? सोहराब चौंका। आप कहना चाहते हैं कि कोठरी दरअसल खाली नहीं है? क्या कहा जा सकता है सोहराब साहब? आपने खुद ही बताया था कि इस कोठरी की सलाखों वाली खिड़की के पीछे आपने एक उधेड़ उम्र शख्स को कहके लगाते और चीखते चिल्लाते सुना था, देखा था। सोहराब पर एक वहशत का सा हमला हो गया और उसका दम जैसे घुटन का शिकार होने लगा। फारूकी और उसकी धीमी आवाज़ों ने भी वहाँ ऐसी ज़बरदस्त गूंज और बाज गश्त पैदा कर दी थी कि उसका जी चाहा कि वहाँ से निकल भागे। मैंने गलत नहीं कहा था फारूकी साहब, वो तलखी से बोला। मैंने आपकी बात की कभी तरवीद नहीं की सोहराब साहब, फारूकी नरमी से बोला। फिर इस वक्त जब कि आपकी बेगम भी इसकी गवाह हैं, मैं 2 अफराद को एक ही जुमले में कैसे और क्यों झुठलाऊंगा जबकि यहाँ आपको लाने का मुहर्रिक मैं खुद हूँ। क्या ख्याल है ज़रा देर को बाहर चलें? सोहराब ने बात टाली। ये बताइए सोहराब साहब, फारूकी ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। जब कल आपने इस खिड़की में एक चीखते चिल्लाते जानदार को देखा था तो अब वो कहाँ गया? मैं क्या कह सकता हूँ, वो बेदिली से बोला। तो क्या हम उसे तलाश करने नहीं आए यहाँ? वो तो ठीक है, मगर तो फिर ये मायूसी और बेदिली क्यों? मेरी बात को गलत मायनों में मत लीजिए। फारूकी ने उसकी बात काट दी। हम जिस काम से आए हैं उसे इख्तिताम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। इस तरह हम बार बार घबरा कर बाहर जाने और वापस आने के चक्कर में रहेंगे तो कब करेंगे? प्लीज़ हौसला जमा रखिए और मेरे साथ रहिए। ऐसे माहौल में इंसान वहम का शिकार भी तो हो जाता है फारूकी साहब। सामने की बात है कि मैंने इस खिड़की से अंदर की जानब देखा था, मगर यहाँ इस खिड़की के सिवा अंदर जाने आने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो फिर ये मेरा वहम ही हुआ ना? नहीं सोहराब साहब, फारूकी मुस्कुराया। फरार का लम्हा तलाश मत कीजिए। रूहों और बदरूहों को दीवारें रोक नहीं पाया करती। आप दरअसल खौफज़दा हो गए हैं। मैं, सोहराब ने कहना चाहा।
आइए ज़रा देर को बाहर चलते हैं। फारूकी ने उसका हाथ थामा, सर्च लाइट ऑफ की और दोनों बाहर निकल आए। बाहर धूप की तमादत में शिद्दत आ चुकी थी। सूरज खासा बुलंद हो चुका था। ज़मीन की मिट्टी में जैसे हल्की हल्की आंच उठ रही थी। चारों तरफ लगी बाढ़ के पार दूर दूर तक दरख्त खामोश और सर झुकाए जैसे उनके हाल पर अफसोस ज़दा खड़े थे। वो चंद मिनट हाल के बाहर टूटे फूटे बरामदे में आध सालम छत तले खड़े ताज़ा हवा खाते रहे। फिर फारूकी ने उसकी जानब छागल बढ़ाई। चंद घूंट पानी पी लीजिए सोहराब साहब, तबीयत संभल जाएगी। सोहराब ने बेइख्तियार छागल उससे ले ली और पानी पीकर ढक्कन लगाकर छागल फारूकी को लौटा दी। उसने भी चंद घूंट पानी पिया और ढक्कन लगाकर छागल कंधे पर डाल ली। फिर संजीदगी से बोला, सोहराब साहब, डर कम हुआ या नहीं? आप शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं फारूकी साहब, सोहराब ने बुरा मंगाने बगैर जवाब दिया। मगर यकीन करें, इस माहौल में बड़े बड़े जीदारों का पिता पानी हो सकता है। मैं ज़िंदगी भर बदरूहों के साथ तो रहा नहीं कि ऐसी बातों का आदी हो जाऊं। मैं फिर कहूँगा सोहराब साहब, खौफ को खुद से दूर रखिए। फिर मैं भी तो आपके साथ हूँ, क्या मुझे खौफ नहीं जकड़ सकता? जकड़ सकता है, मगर आप कई बरसों से यहाँ आ जा रहे हैं। सोहराब ने तावील की। मैं पहली या दूसरी बार कह लें यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे खौफ ज़दा होने की थोड़ी बहुत रियायत तो दें। दोनों हंस पड़े। माहौल से दहशत का असर खासा कम हो गया। तो अब भी आप बूढ़े को अपना वहम समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, वो एक वक्ती और बेवकूफ़ाना राय थी। मैंने अपनी आंखों से देखी को इसलिए भी नहीं जुटला सकता कि शमा भी मेरे साथ उसकी गवाह है। आपकी ये बात मेरे यकीन को वापस लाने में बेहद मुआवन साबित हुई है। देखिए सोहराब साहब, फारूकी ने बेहद संजीदा लहजे में कहा, हो सकता है कि मैं आप या आपकी बेगम की बात को आप दोनों का वहम ही समझता, मगर आपने जिस वाक़े की तस्दीक की वो मेरे साथ कई बार पेश आ चुका था। मैं खुद मौसीकी की वो झंकार, उस बूढ़े की चीखें और कह के सुन चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। और दूसरे वाक़यात का तसलसल इस बात की गवाह है कि यहाँ कुछ ना कुछ है ज़रूर, और उसी को हम तलाश करने के लिए यहाँ आए हैं। ज़ाहिर है, बहरहाल अब मैं खासा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो फिर अंदर चलें। ज़रूरत, सोहराब ने खुश दिली से कहा। वैसे एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सोहराब साहब, फारूकी ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, ये बात मैं शमा बेगम से भी कह कर आया हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। आपसे पहले जो आंच भी आई मुझ पर आएगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ फारूकी साहब। मैं जानता हूँ कि आप जैसे बाअसूल लोग कभी बात से फिरा नहीं करते। ये बात नहीं सोहराब साहब, फारूकी मुस्कुराया। गैर मरी कुव्वतों के सामने बुज़दिली और बहादुरी दोनों का एक रंग उड़ जाता है। ये भी मुमकिन है कि हालात ऐसी करवट ले लें कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कर सकें। बहरहाल अल्लाह मालिक है, आइए अंदर चलें। सोहराब ने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और फारूकी के साथ दोबारा खंडरात में दाखिल हो गया। 2 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। दोनों खंडरात के अंदर बाहर दीवानों की तरह घूमते रहे। बढ़ती हुई गर्मी उनको परेशान कर रही थी। दोनों ने ही एक अजीब बात महसूस की जिसे सोहराब ज़ुबान पर लाए बगैर नहीं रह सका। फारूकी साहब, एक जगह रुक कर सोहराब ने आस्तीन से माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए कहा, आपने एक बात पर ध्यान दिया क्या? वो क्या? फारूकी ने उसकी जानब देखा। हम खंडर से बाहर गए थे तो गर्मी का ये आलम नहीं था। अंदर यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम किसी ओवन में घूम फिर रहे हों। हाँ, मैं ये बात पहले ही नोट कर चुका हूँ, फारूकी ने रुमाल से चेहरा साफ करते हुए जवाब दिया। यहाँ का माहौल बाहर से कदरे नहीं बिल्कुल मुख्तलिफ है। गर्मी और तपश का एहसास खासा तकलीफ़दा है, और उसकी कोई वजह भी तो होगी। एक वजह तो ये है सोहराब साहब। 1 मिनट, सोहराब ने अचानक उसकी बात काट दी। मैं बड़ी देर से एक उलझन महसूस कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात सुनकर उसे दूर कर दें तो मैं खासा हल्का फुल्का हो जाऊँगा। कोई ख़ास बात? जी हाँ, मेरे लिए ख़ास ही बात है, तो कहिए। फारूकी साहब ने सोहराब ने बड़े नरम लहजे में कहा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे सिर्फ सोहराब कहिए। सोहराब कहकर
साहब कहकर आप मुझे तकलीफ की दीवार के परे धकेल देते हैं। प्लीज़ ये साहब दरमियान से हटाइए। अरे इतनी सी बात। फारूकी खुश दिली से हंसा। लीजिए साहब, आप सोहराब साहब से अब सिर्फ सोहराब हो गए। साहब को हमने ताक में बिठा दिया। शुक्रिया। अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अंदर और बाहर के माहौल के फ़र्क की एक वजह तो ये है कि यहाँ का हवा का निकास बहुत कम है। हब्बस और घुटन ने सदियों से यहाँ डेरे डाल रखे हैं। और दूसरी बात ये है कि बज़ाहिर हम दोनों यहाँ घूम फिर रहे हैं, जबकि हकीकत में यहाँ बेशुमार नादीदा वजूद भी सांस ले रहे हैं, जिनकी कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसानों से ज़्यादा जहरीली और दहकती हुई है। ओहो, सोहराब ने होंठ सीटी के अंदाज में सकोड़ लिए। ये तो मेरे ध्यान ही में नहीं रहा। बहरहाल कुछ भी वजह हो, उस वक़्त तक हम नाकामो नामराद ही घूम रहे हैं। सब्र बहुत बड़ी ढाल होती है सोहराब। अरे मेरा मतलब है सोहराब, किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने, उससे फाते बनकर निकल आने और ख़ुद को महफूज रखने के लिए सब्र से बड़ी कोई ढाल, कोई हथियार नहीं होगा। अगर तुम मुनासिब समझो तो आओ हम एक बार फिर पूरे हाल और दूसरी जगहों का जायज़ा ले डालें। चलिए। सोहराब ने कंधे उचकाए। यक न शुद्ध दो शुद्ध, मेरा मतलब है कि एक बार भी मैं ना हंसी, शायद दूसरी बार में कुछ मिल जाए। उसने मुहावरे का ऐसा बेकार इस्तेमाल किया कि फारूकी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। सोहराब ने खुद को हालात और फारूकी दोनों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो इनकार भी करता तो फारूकी उसे एक जगह बिठाकर खुद खंडरात के दौरे पर निकल पड़ता। अकेले खौफ खाने से बेहतर था कि वो फारूकी के साथ साथ रहता। थोड़ी देर के बाद वो दोनों फिर मलबे के छोटे बड़े ढेर अबूर करके हाल और फिर हाल से मुल्हका दूसरे हिस्सों में चकराते फिर रहे थे। सारा स्याह महल छान फटक कर जब वो आखिर में उसी सलाखों वाली खिड़की के पास दोबारा पहुंचे तो सोहराब ने सर्च लाइट रोशन करके उसकी रोशनी सलाखों से अंदर फेंकी। जैसे ही रोशनी का दायरा सलाखों पर आया, कोठरी के अंदर से एक बड़ी सी चमगादड़ फड़फड़ाती हुई बाहर निकली और चीखती हुई हमला करने के अंदाज में सोहराब की तरफ लपकी। सोहराब के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसने खुद को बचाने के लिए दोनों बाजुओं को चेहरे के आगे ढाल बना लिया। सर्च लाइट उसके हाथ से गिर पड़ी और चमगादड़ उसके हाथ से टकरा कर पिछली तरफ निकल गई। फारूकी ने जेब से रिवाल्वर निकाला, मगर इससे पहले कि वो इस्तेमाल करता, वहाँ चमगादड़ों के गोल उमड़ आए और उनकी चीखों और फड़फड़ाहटों से सारा हाल गूंज रहा था। सोहराब ने भी रिवाल्वर निकाल लिया था, मगर दोनों उन्हें इस्तेमाल करने से कासर थे, क्योंकि चमगादड़ें पड़े परे बांध कर उन पर झपट रही थी। वो अपने चेहरों को बमुश्किल उनसे बचा पा रहे थे। सर्च लाइट सोहराब के पैरों में गिरी पड़ी थी। सोहराब, सर्च लाइट उठाओ, रोशनी इन पर डालो, फारूकी ने अचानक चिल्ला कर कहा। फिर फुर्ती से उसने अपनी सर्च लाइट ऑन की और इस दौरान में सोहराब भी अपनी सर्च लाइट उठा चुका था, जो कोई किस्मत से गिरने के बावजूद टूटने या नाकारा होने से महफूज रही थी। दोनों ने एक हाथ से चेहरे पर आड़ की और दूसरे हाथ में थामी हुई सर्च लाइट की रोशनी का रुख चमगादड़ों की तरफ कर दिया। नीचे बैठ जाओ सोहराब, हाथ और घुटनों में सर देकर चेहरा छुपा लो, ये चमगादड़ें बेहद खतरनाक हैं, फारूकी ने चीख कर कहा और उसके मुंह से करीब होते हुए भी चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहटों और चीखती आवाज़ों में बमुश्किल सोहराब के कानों तक पहुंची थी। सोहराब ने उस पर फौरन अमल किया और सर्च लाइट एक हाथ से इधर उधर घुमाते हुए फर्श पर अकड़ूं बैठ गया। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर ना जाने क्या हुआ कि सारा हाल एकदम सन्नाटे में डूब गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी चमगादड़ की आवाज़ बाकी ना रही, ना उनके परों की फड़फड़ाहटें। डरते डरते सोहराब ने सर उठाया, वर्जीदा निगाहों से इधर उधर देखा। उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे कहीं कोई चमगादड़ मौजूद ना थी, जैसे वहाँ कभी कोई चमगादड़ आई ही ना थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता खुद को पुरसकून किया, सर्च लाइट का रुख नीचे की तरफ किया और उठकर खड़ा हो गया। फारूकी को देखने के लिए जो ही उसने पलट कर नज़र दौड़ाई, वो हैरत और खौफ से साकत होकर रह गया।
फारूकी उसके चंद कदम के फासले पर दोनों हाथ कोलवों पर रखे खड़ा था। ये हैरत की बात नहीं थी। हैरत के समुद्र में गर्क कर देने वाली बात यह थी कि फारूकी के बिल्कुल सामने वही सलाखों के पीछे नजर आने वाला बूढ़ा खड़ा था। एक झटके से सोहराब ने बूढ़े की तरफ देखा, जो तमतमाते हुए चेहरे के साथ फारूकी को गजबनाक नज़रों से अब भी घूरे जा रहा था। सोहराब का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका सारा जिस्म सर्द पड़ गया हो। तुम, बूढ़े के करी होंठों से बड़ी नफरत आलूद आवाज़ निकली। तुम फिर आ गए? हाँ, मुझे आना ही था, फारूकी ने उसे बड़ी सर्द निगाहों से घूरते हुए जवाब दिया। तुम जानते हो कि यह तुम्हारी आखिरी आमद भी हो सकती है, बूढ़ा किसी भूखे भेड़िए की तरह घुराया। जानता हूँ, फारूकी ने उसी इत्मीनान का मुजाहरा किया जिसके साए में वो अब तक तन्हा खड़ा था। लेकिन याद रखो, मैं सहरा का कोई आवारा झोंका नहीं हूँ जिसे तुम्हारी दहशत और खौफ रफ्तार कम करने पर आमादा कर ले। तुम जानते हो, मैं कल भी ताकतवर था, मैं आज भी कमज़ोर नहीं हूँ। और बूढ़े नफरत से होंठ सकोड़े। ताकतवर? इसीलिए आज तक तुम यहाँ आकर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, नाकाम लौट जाते रहे। अगर तुम दुबदबाकर अपने बिल में घुसे रहो, बाहर ना निकलो, तो मेरी वापसी को तुम नाकामी कह सकते हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारी बुज़दिली और वक़्त की दी हुई मोहलत कहूँगा। हाँ, और बूढ़ा बल खाकर रह गया। वक़्त, मोहलत, बुज़दिली, लफासी खूब करते हो तुम। और ये अचानक यूसी ने सोहराब का रुख कर, ये किसी नादान को साथ उठा लाए हो तुम। अभी तो इसके खेलने खिलाने के दिन है। हाँ, इसकी बीवी, उसने जैसे लज्जत से बेताब होकर आंखें बंद कर लीं। वो शाहकार है, उर्फा की तरह, और उसे साथ लाते तो कुछ बात भी थी। खामोश बदबख्त, फारूकी हलक के बल चीखा। उसकी आंखें हलकों से उबल पड़ी थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। सोहराब भी कुछ ऐसी ही हालत का शिकार हुआ और उसका खौफ एकदम खून के तपश में बह गया और उसका जी चाहा कि आगे बढ़े और उस खबीस बूढ़े का चेहरा नोच ले। मुझे खामोश कराना तेरे बस में नहीं है। जा, चला जा। ऐसा ना हो कि मेरा ज़बर दम तोड़ दे और तू बेरूह हवाओं का साथी बनकर रह जाए। बूढ़े ने हकारत से फारूकी को देखते हुए कहा, तुझे तेरे बिल से बाहर निकाल कर भी वापस चला जाऊं, नाकाम, नामुराद और मायूस? ये नहीं होगा। फारूकी सर झटक कर बोला। तू क्या करेगा तू? वो तमस्कर से घुराया। मैं तुझसे अरफा को आज़ाद कराऊंगा। क्या? बूढ़े ने उसे हैरत से देखा। फिर उसका बुलंदो बांग कहका स्याह महल के हलक में वहशत की हदों को पार करते हुए गूंजने लगा। वो पागलों की तरह हंस रहा था और उसने जैसे किसी नन्हे बच्चे के मुंह से पहाड़ को अपनी जगह से हिलाने की बात सुन ली थी। जैसे अभी वो किसी बड़ी चमगादड़ की तरह फिजा में उड़ने लगेगा। तो तू उर्फा को मुझसे आज़ाद कराएगा? तू? वो हंसते हंसते एकदम खामोश हुआ। तो शराब को महसूस हुआ जैसे हाल में अचानक बदरूहों ने चीखना बंद कर दिया हो। हाँ, मैं, फारूकी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। अरफा मेरी मलकियत है, ये जानता है ना तू? मलकियत? फारूकी तनस से बोला। किसी मजबूर को अपने चुंगल में फांस लेना, उसके हवास ख़त्म करके उसे अपना कैदी बना लेना, ये मलकियत नहीं, ज़बरदस्ती है जो तूने उसके साथ की। हाँ, बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी को मुट्ठी में थाम कर घुराया। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसे करने पर कुदरत हासिल थी। मेरे पास उसका अख्तियार भी था और ताकत भी। मैंने उसे बहका कर अपने हरम में दाखिल नहीं किया था। वो मेरी पेशकश कबूल कर लेती तो मेरी बलका बनकर रहती, मगर वो तोड़ गई थी अपनी बात पर। उसने अपनी माँ के मशवरे पर मुझे ठुकरा दिया था। फिर मैंने उसे अपनी ताकत अपने सहर के दौर पर हासिल किया, कनीज बना लिया, कैद कर लिया। ये मेरा जाम है जिस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कलमाशा, सोहराब के दिमाग में झंकार सी हुई। यकीनन ये कलमाशा ही है, और उसके दिल ने तस्दीक की। उसे फारूकी की सुनाई हुई सारी दास्तान एक पल में फिल्म की तरह दिमाग में घूमती हुई महसूस हुई। ये तुम्हारी ताकत नहीं, वो जुर्म है कलमाशा। फारूकी ने सोहराब के ख्याल की तायद की, जिसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, और ऐसी इबरतनाक सज़ा कि मासूम जवानियों को अपनी हवस की भीड़ चढ़ाने का जुर्म तुझे अब तक आग के अजाब में मुब्तला रखेगा। आग का अजाब? बूढ़ा मुस्कुराया तो उसके करी होंठों पर कफ सा लहरा गया। आग मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है।
मैं इसमें पैदा हुआ हूँ, इसमें पला बड़ा, इससे मेरी यारी है। मैं आग से और आग मुझसे है और उसका अज़ाब मेरे लिए नवीद हयात है। तू अपनी गलत फहमी दूर कर ले। इसका तुझे उस वक़्त अंदाज़ा होगा कलमाशा जब तू उसकी भट्टियों में चला जाएगा। आग किसी की दोस्त नहीं होती, ये सिर्फ जलाती है, अजियत देती है, मारती है, ज़िंदगी नहीं देती। झूठ, सरासर झूठ। बूढ़ा उसकी तरफ उंगली उठाकर चीखा, क्या तेरी किताब में नहीं लिखा कि मेरे मालिक, मेरे खरीदार इबलीस को आग से पैदा किया गया था? मैं उसी आतिश अजली का पुजारी हूँ, इबलीस का पुजारी। उसने मुझसे मेरी रूह को ख़रीद लिया, मुझे वो कुछ दे दिया जो तुझ जैसे नादान सोच भी नहीं सकते। उस इबलीस ने मुझे मेरी पूजा के एवज़ वो ताकतें दी जिनका कोई इख्तिताम नहीं। गलत कहता है तू। फारूकी ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। सिर्फ मेरे अल्लाह की ताकतों और कुदरतों की कोई इंतहा नहीं है, बाकी सब कुछ फ़ानी है, अपनी हदूद में कैद है। तेरी दीवानगी, हवस और ताकत महज एक शराब है, धोखा है, वक्ती फ़रेब है जिसका इख्तिताम किसी भी वक्त हो सकता है।